So let's start our today's topic. Before that, a very good afternoon, dear student. Okay, today we have to focus on the queue data structure. Okay, that is circular queue we are talking about. Okay, so we have seen the in previous video how circular queue will work. Okay, so before that, queue is having two pointer, front and rear. We have to insert the element from rear side, means back side, and deleting from front side. This is a concept of queue data structure is okay. So basically what exactly the problem statement is that we need to see first. Okay, because we have to implement circular queue अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन. ओके, सो सर्कुलर क्यू का जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हमें असाइनमेंट बनाना है. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट the assignment is this is the last assignment of queue data structure. Okay, and almost we have completed it. Okay, fine. So the assignment is pizza parlor. We have to create the pizza parlor accepting maximum m orders. Okay, so according to pizza parlor, we are accepting m orders, means everyone knows that how the order will take place in any hotel. Okay, so we have to take order first, then those who are taking first order, the service will given by them only. Okay, जो first आएगा उसको first service मिलेगी. This is FCFS concept. Okay, first come first serve. Okay, so the application is pizza parlor accepting the maximum m orders. Okay, order are served in first come first serve basis. Yes, the order should be in sorry, queue data structure, that is who is come first, they will service should be first. Okay, what's next? The basic order once placed cannot be cancelled. Yes, when once the order is placed, everyone knows order is placed, then you cannot cancel the order. So that we have to write a C++ program to simulate the system using circular queue. Okay, circular queue data structure हमें use करना है, और according to that we have to create that pizza parlor system. Okay, so everyone knows, everyone goes to the hotel and first of all check the menu card and check the finalize the menu and place the order first, then order will serve. Okay, मीन्स जैसे ऑर्डर, जैसे आपने कुछ ऑर्डर दिया है पिज्ज़ा पार्लर में, ऑर्डर दिया है, वो पहले जो ऑर्डर करेगा उसको फर्स्ट सर्विस मिलेगी, और उसका क्यू में से वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि उसकी ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है. तो ऐसा हमें सिस्टम बनाना है. ओके, तो हमारा सिस्टम क्या है उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो बेसिकली यू हैव टू फोकस्ड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट. ओके, पहले हम मेन में देखेंगे हमें करना क्या है. ओके, इज इट ऑडिबल टू ऑल? ओके, सो फाइन. सो बेसिकली क्या करना है वो मैं अपने मेन फंक्शन बताती हूँ, एक्चुअली हमारा असाइनमेंट क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू perform these four operations, actually three operation. We have to take first order place करना है पिज्जा ऑर्डर का. उसके बाद whether it is serve or not, जैसे ऑर्डर, जैसे पर्टिकुलर कस्टमर ने ऑर्डर दी है उसको वो सर्विस मिल चुकी है, एट दैट टाइम द ऑर्डर शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू. ओके, मतलब वो ऑर्डर जो भी है, जो मैनेजर के साइड में जो सिस्टम रहेगा उसमें वो ऑर्डर नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस हो चुकी है. ओके, and we have to display that order how many orders are remaining. Okay, so actually we have to perform these three functions. First one, place order, means we have to push the element into queue data structure. Serve order means we are after serving or after completing the order of customer, the order data should be deleted from the मैनेजर साइड. ओके, सो सर्व ऑर्डर मीन्स वो डिलीट होना चाहिए, एंड डिस्प्ले मीन्स हाउ मेनी ऑर्डर्स आर रिमेनिंग. ओके, so these three function we have to perform. Okay, fine. So according to that we have created a switch case here. Then first case one, that is place order. For place order, enqueue function is work. Okay, enqueue means we have to entering or inserting or pushing the element into queue. Dequeue means deleting the element from the queue, and we have to display it. These three functions are very very important. Okay, this is our main agenda is. Okay, now we focused on the implementation part here. Okay, so first of all, no doubt our program is start in C++, so we have to use hash include IO stream container is required
फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करके ही हम लोग सी प्लस प्लस के सारे सीन सी आउट ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हियर one important part is that the constant, we are taking constant variable, the type of that variable is integer, max equal to 5, means how many element we can access at the time, that is 5, means max की size हमने 5 constant की है, means throughout program में उसकी value सिर्फ 5 होगी, we cannot change it. Okay, so now we are initializing, this is another way to declare the variable globally. Okay, now हमने एक क्लास लिया है, वी हैव टेकन टू क्लास बेसिकली, क्लास ऑर्डर एंड क्लास क्यू. We are separating these two class, just concentrate here. So first class is what class order is. Okay, order में हमने क्या किया है, we have to ऑर्डर क्लास में क्या होगा, उसके डेटा मेंबर क्या रहेंगे, इंटीजर ऑर्डर आईडी, कौन सा ऑर्डर आईडी है, कौन से टेबल का ऑर्डर है, वी हैव टू मेंशन इट. सो इंटीजर ऑर्डर आईडी एंड कैरेक्टर ऑर्डर नेम. ओके, सो क्या ऑर्डर करना है, so उसका नेम यहाँ पे आएगा, मतलब डेटा मेंबर ऑफ क्लास ऑर्डर इज order id and order names. Okay, this is the data member of class order. Second, in a public section we have to declare the member function of class order is, okay, that what is that exactly, void accept order. So accept order and display order, these are the member function of class order. Okay, so what about uh, void accept order. एक्सेप्ट ऑर्डर मतलब क्या क्या हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो डेटा मेंबर है उसको स्कैन करना पड़ेगा. तो एक्सेप्ट मीन्स वी हैव टू स्कैन द एंटर ऑर्डर आईडी, so we have to scan it using c in object order id, enter order name, so we are going to scan the order name here. So accept order में हम लोग क्या कर रहे हैं, order का input कर रहे हैं. Okay, so now the second member function of order class is display order. Okay, for display order we are going to display that order is, means order id and order name, we are going to, we have directly display it. Okay, so this is a simple class we are using here, that is class order. order का क्लास हम बना रहे हैं तो उसमें ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नेम रहेगा. so simply we just scanning that order and display that order. Okay, so these two member functions executed in class order. Okay, now we are more features of OOP we have used here, that is second we are using friend keyword. Okay, so what is the use of friend keyword actually, so point, no problem. Okay, fine, just concentrate. When instead of class I am declaring this class q in order class, because I am friend class is a class in which when we are I'm assigning this friend class q of that order class, means this q class can access private member of order class. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में जैसे मान लो आपके पास हर एक के पास वॉलेट होता है, पर्सनल चीज़ें होती है. ओके, सो आप किसी को भी दे देते हो कि चलो ये मेरा फ्रेंड ये है, सपोज मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स है तो मैं किसी के पास भी दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है. फ्रेंड हम जिसको बोलते हैं कि के साथ हम हमारी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं. ओके, सो सिमिलर टेक्निक वी आर यूजिंग इन this concept. So when we are making the class q is a friend, means the ये क्लास क्या हो गया है, ऑर्डर क्लास का फ्रेंड हो चुका है. मीन्स द क्यू डेटा स्ट्रक्चर और सॉरी अ क्यू क्लास कैन इजीली एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ class order, because in c++ we cannot access private member of any class. Okay, so that's why this concept is used in c++. We are using friend keyword. why friend, because जब ऑर्डर क्लास ने क्लास क्यू को फ्रेंड बनाया है, मतलब क्लास क्यू ऑर्डर क्लास के प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सकता है. दैट्स व्हाई द फ्रेंड कीवर्ड इज यूज्ड. ओके, so that's why we are using friend. How we are going to access it, just we are going to see now. Just concentrate here. Fine, so I'm declaring the second class, that is class q is. Okay, so what is the data member of that class, just concentrate here. The first order data we are इनिशियलाइजिंग और वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल डेटा ऑफ मैक्स. बस कौन से क्लास का डेटा मेंबर है, वो डेटा एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने क्या
कौन से क्लास का है वो, ऑर्डर। तो उसका डिक्लेरेशन क्या किया है, ऑर्डर, ये क्लास का नाम है ऑर्डर। उसका टाइप क्या रहेगा, जो क्लास का टाइप है ऑर्डर डेटा ऑफ मैक्स, मतलब कितने टोटल 5 डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब मैंने ये एरे बनाया, एरे बनाया मीन्स वो ऑर्डर आईडी और ऑर्डर नेम किस में स्टोर होगा, डेटा में स्टोर होगा। ओके, नो डाउट, in which it has a two pointer and queue data structure, that is front and rear, that we are declaring first. Okay, in public, no doubt we have used, this is a constructor, everyone knows. Okay, in C++ features, almost features I'm trying to use here, that is constructor I am using. Okay, so what is the role of constructor is, constructor is used to initialize the data member of क्लास। ओके, सो कंस्ट्रक्टर के डेटा मेंबर हम लोग, सॉरी क्लास के डेटा मेंबर हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इज, कंस्ट्रक्टर में क्लास क्यू के डेटा मेंबर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। सेकेंड, the why it is special member function of class, because the class name and constructor name is same. Okay, when we are not using the constructor, if I am implementing this program in C++, तो मुझे front and rear को जब मैं function call करूँगी, suppose मैंने enqueue function call किया, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to initialize, main में मुझे front and rear को क्या करना पड़ता था, -1 करना पड़ता था। तो this is the speciality of constructor. I am again revising the constructor concept here. Constructor is a special member function of class because the class name and constructor name is same, first thing. Second, in constructor we are going to initialize the data member of that class. Why we are going to initialize, because what is the speciality of it, because जब ये class का object create किया जाएगा, when we have created the object of this class, ये class का जब object create किया जाता है एट दैट टाइम, जब कंपाइलर मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है हमेशा, तो ये जब क्यू को एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, एट दैट टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एट दैट टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल्स ऑटोमेटिकली। तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और फ्रंट एंड रेयर को -1 कर देगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ दैट क्लास इन कंस्ट्रक्टर। तो ये कंसेप्ट सबने क्लियर करना है कि क्यों हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कंस्ट्रक्टर में हम स्पेशल क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, एट दैट टाइम कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और उसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू इनिशियलाइज सेपरेटली इन मेन। ओके, सो दिस इज अ मेजर concept of constructor that is used in C++. So this is very important feature. So you should know how it is used. आपको इतना ही पता होगा कि इसको कंस्ट्रक्टर का नाम और वो सेम है, देन उसमें इनिशियलाइज करते, बट क्यों करते उसके पीछे ये लॉजिक है। ओके, फाइन। सो कंस्ट्रक्टर, आई होप एवरीवन क्लियर। नाउ फॉर सेकंड क्लास, क्लास क्यू के जो मेंबर फंक्शन है वो कौन से है, एन क्यू मीन्स वी हैव टू इंसर्ट द order, pizza order into queue. If you want to delete it, yes, after serving the order it should be deleted. Then we have created two more function, that is whether the queue is full and whether the queue is empty. ये दो functions हम लोगों को concentrate करने हैं। Okay, then we have to display the queue. Okay, so these are the basic operation that we have to perform. Whether the queue is full, तो हम क्या करने वाले हैं, queue full है उसका separate function बना रहे हैं, queue empty है उसका separate function बना रहा है, क्योंकि when if you want to insert the element into queue, we have to check whether queue should be full or not. That's why full and empty function also very important. Okay, so now we focused on first function, that is queue full. तो उसका हमने पहले एक फंक्शन बना लिया है, एंड द फंक्शन is full is the name of the function. This is the return type of that function, integer. This is name of the class. So this is what we are defining the function outside of the class. So outside of the class definition कैसे होगा, okay, function definition, okay, function definition outside of the क्लास। ओके, क्लास के बाहर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द
return type of that function is integer, then name of the class, then scope resolution operator is given. Scope means scope resolution operator gives what is the scope of your function. Function का scope सिर्फ उस class के लिए limited रहेगा. Then name of the function and rounded bracket. Okay, so this is the syntax. We have to define the function outside of the class. Okay, now अभी क्यू full है. क्यू full कब होगा? This is circular queue. So you can think upon circular queue मतलब सर्कुलर क्यू में पूरे एलिमेंट फुल हो गए. बेसिकली यू कैन concentrate on this example also, so you can easily understand all this point. Okay, so suppose just concentrate here in this example. So I'm highlighting here 8 8 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो इसके ऊपर सबने फोकस करना है. यहाँ पे देखो अभी इंसर्ट 40 रेयर 1 फ्रंट 2 मीन्स क्यों सर्कुलर फैशन में है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट भर के हो चुके हैं. मीन्स फ्रंट का पॉइंट कर रहा है. देखो लेट्स से फ्रंट सेकंड पोजीशन पे है, रेयर 1 पोजीशन पे है. ओके, मीन्स पूरा क्यू भर के हो चुका है. जब तक एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते तब तक हम नए एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते. ओके, मतलब पूरा क्यू हमारा फुल है. सो व्हेन द फुल क्यू इज फिलिंग, तो उसके इसमें हमें कैसे करना है, मतलब कोड कैसे करेंगे हम लोग. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन द कोडिंग पार्ट नाउ. ओके फाइन. सो ओके, नाउ क्यू फिल मीन्स ये देखो फ्रंट 0 पे है और रेयर मैक्स -1 पे. मीन्स व्हाट, हमारे जो क्यू में है सर्कुलर फैशन में है, एक भी एलिमेंट डिलीटेड नहीं है. इसका मतलब है फ्रंट 0 पे रहेगा और रेयर मैक्स 1 मतलब पीछे से पूरे सर्कुलर में 0 से स्टार्ट हुआ है तो एंड तक सारे एलिमेंट हमने भर दे चुके हैं. मतलब हमारा पूरा क्यू फुल हो चुका है, हमने एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया. रेयर से भरते भरते वो लास्ट लोकेशन तक जा चुका है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्यू फुल इज फ्रंट इक्वल टू 0, मतलब एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं है, एंड रेयर इक्वल टू मैक्स -1 means rare goes to the last position, and or means front इक्वल टू rare +1. yes, मतलब rare के नेक्स्ट पोजीशन में फ्रंट रहेगा. सो इसका मीनिंग क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या था फ्रंट इक्वल टू रेयर +1. देखो अभी सपोज ये सेम एग्जांपल मैं भी लेती हूँ लाइन नंबर 8 का, जिससे आपको समझ में आएगा. जब आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करोगे देन यू डेफिनेटली क्लियर द कंसेप्ट. सपोज यहाँ पे देखो ये जो क्यू है, ये क्यू में सारे एलिमेंट है. ओके, आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वेयर द रेयर इज पॉइंटिंग. 1 एंड 2 लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेट मत करो. यहाँ पे देखो फ्रंट रेयर के आगे है, मीन्स रेयर इक्वल टू फ्रंट +1. ओके, मतलब फ्रंट कहा गया है, रेयर लास्ट तक एलिमेंट हमने भरा है, और फ्रंट नो डाउट सर्कुलर में पूरा क्यू जब भरा होगा और एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया होगा, तो नो डाउट फ्रंट जो रेयर से एक पॉइंट आगे रहेगा. ओके, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ क्यू इज फुल. ओके, सर्कुलर में ये देखो मतलब पूरा क्यू हमारा भरा है. 50 20 70 100 40 एलिमेंट हमने भर चुके हैं, और जो फ्रंट है वो फ्रंट नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. क्यों? क्योंकि रेयर लास्ट पोजीशन में जा चुका है, मतलब पूरा क्यू भर चुका है और एलिमेंट भी डिलीटेड नहीं है. इसका मतलब है फ्रंट हमेशा रेयर से एक पॉइंट आगे रहेगा. So that's why we are taking this condition also in queue data structure, that is, which is important condition here, that is very important. So everyone understand this concept, that is front इक्वल टू रेयर +1. ओके, मतलब फ्रंट रेयर से एक पॉइंट आगे जा चुका है, मतलब पूरा क्यू भरा है. ओके, सो इफ इट इज सेम देन रिटर्न 1, because we are returning the value of that function is integer, that's why we are returning 1, else return 0. Okay, so this is full queue function. Okay, similarly we are talking about the queue is empty. Queue empty means what? There is no element stored into the queue. It's very simple condition, that is front b -1 पे है, rear b -1 पे है, means we are not storing any element, that's why return 1, else return 0, because we are returning the integer value of that function. Okay, and always remember that AND operator plays major role in any condition. Ampersand operator means
बोथ द टर्म्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे भी फ्रंट इक्वल टू जीरो एंड रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस वन मीन्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, दोनों में से दोनों ही ट्रू रहेंगे तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, otherwise it's not working. Fine. So this is what the queue is full and queue is empty. Okay. Now the next function is enqueue, means we have to insert the element into queue. Okay, so for inserting the element into queue we have to check first whether the queue is full or not. So this we have created we are defined the function of queue full is, so we just calling that function. Okay, so if is full is queue is full rounded bracket में, okay, return कब करेगा, when the value is returning here 1, वो रिटर्न 1 कब होगा, जब ये फुल रहेगा तब. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न 1 दिया है. रिटर्न 1 मतलब ये रिटर्न 1 कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल के यहाँ पे आएगा. इफ इट इज फुल, रिटर्न 1 वैल्यू उसको मिलेगी, मीन्स कांट प्लेस द ऑर्डर, क्यू इज फुल. ओके, एल्स एल्स मीन्स क्यू एम्प्टी है, क्यू फुल नहीं है. तो हमने यहाँ पे कैसे एलिमेंट को डाला, देखो, एल्स ऑर्डर ऑर्डर टेम मीन्स हमने फर्स्ट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज ऑर्डर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे ऑर्डर टेम. we have created the object here, that is name of the class is order, object name is temp. So temp dot, using dot operator we are accepting function here. accept order means क्यू में हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट करने के लिए पहले स्कैन करना पड़ेगा, तो ये एक्सेप्ट ऑर्डर का फंक्शन हमने कॉल किया. Got it everyone? So again I am revising this function. एन क्यू में एल्स पार्ट में ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके थ्रू ऑर्डर क्या, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नेम हमें क्या करना है, स्कैन करना है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन एक्सेप्ट ऑर्डर. ओके, सो वी आर गोइंग टू इंसर्टिंग इनटू इट. बट जैसे हम लोगों ने एलिमेंट को इंसर्ट किया है, if we have to check if rear equal to max minus 1 and front is not equal to 0 means हमने क्यू में एलिमेंट, हमने हमारा रेयर क्यू में ऑर्डर प्लेस करते करते कहाँ तक जा चुका है, लास्ट तक जा चुका है, और फ्रंट भी जीरो पे नहीं, मतलब ऑर्डर भी डिलीट हो चुके हैं. तो हमें फोर्सफुली रेयर को क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हमें उसमें एलिमेंट डालने हैं. Okay, again we are going to check this condition here so that you can clear this point. Okay, ये देखो, अभी मान लो हमारा ये देखो रेयर रेयर में से हम लोग क्या कर रहे हैं, रेयर से क्या कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं. ये देखो, जब सपोज आपने फर्स्ट वाला 7 नंबर का लाइन देखा, ओके, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें वैल्यू क्या डालनी है. जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन दिस एग्जाम्पल 7 इंसर्ट 100. ओके, तो यहाँ पे रेयर क्या कर रहा है, डेटा भर रहा है, डेटा भर रहा है. मान लो लास्ट लोकेशन रेयर का क्या है, 100 है, और फ्रंट भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस एग्जांपल में फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, फ्रंट सेकंड पोजीशन पे. मतलब फ्रंट भी जीरो नहीं है, फ्रंट लो नहीं है, फ्रंट उसका काम कर रहा है डिलीटिंग का, और रेयर बट डेटा भरते भरते लास्ट लोकेशन तक जा चुका है. तो ऐसे टाइम में क्या करना है, रेयर में फिर से एलिमेंट डालना है. तो रेयर में यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो मुझे फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, रेयर को -1 करना पड़ेगा. वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज लिंक लिस्ट का कंसेप्ट ही है, सॉरी, सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट क्या है, सर्कुलर क्यू में हम लोग वन साइड से एलिमेंट रिमूव भी करते हैं, जो वेस्टेज मेमोरी है, मान लो यहाँ पे जो मेमोरी वेस्ट हो रही है उसको हम फिर से रीयूटिलाइज कर रहे हैं. इस अगेन वी कैन स्टोर द एलिमेंट इनटू दैट क्यू, बट लीनियर क्यू में इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर द एलिमेंट इनटू क्यू. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज पर द सर्कुलर क्यूज. ओके, मतलब हमें फिर से रीयूटिलाइज करना है, क्यूब फुल हो चुका है रेयर से डेटा भरते भरते इंसर्ट करते करते, बट उसको हमें फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है. बिकॉज अगेन एलिमेंट जब इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर इंसर्ट, ये तो सारे कंडीशन चेक की, एक्चुअल एलिमेंट जो क्यू में जाएगा वो यहाँ से जाएगा. सो वो एलिमेंट कहाँ से जाने वाला है, सो वी हैव टू इंसर्ट डेटा नाम का जो हमारा क्यू है, डेटा प्लस प्लस रेयर, मीन्स रेयर को प्लस प्लस कर और उसमें आपका डेटा डाल दे. टेम्प मतलब क्या, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसका मतलब है हमारा टेम्प ऑब्जेक्ट में हमने क्या कॉल किया है, एक्सेप्ट ऑर्डर. मतलब एक्सेप्ट ऑर्डर फंक्शन में क्या है, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नेम, तो वो कहाँ चला जाएगा,
क्यू के अंदर. सो आई होप एवरीवन क्लियर इज. डेटा ऑफ, डेटा मीन्स अपने क्यू में, क्यू का नाम क्या है यहाँ पे डेटा के रेयर में, रेयर पहले -1 पे था तो उसको 0 पे करो और उसमें क्या डाल दो, टेम्प डाल दो. टेम्प मीन्स योर order details, that is order id and order name. Okay, and simply we displayed is see out order placed successfully. Okay, then if जस्ट कॉन्सेंट्रेट, इनिशियली जब हम लोग एलिमेंट डाल रहे हैं क्यू में तो पहले फ्रंट तो -1 पे होता है, रेयर भी -1 पे होता है. तो यहाँ पे हमने रेयर को इधर ही प्लस प्लस कर दिया, डेटा ऑफ प्लस प्लस रेयर. मतलब रेयर जिस पोजीशन में है, डेटा ये एरे है, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं. सो डेटा ऑफ प्लस प्लस रेयर इक्वल टू 10. ओके, एंड सी आउट डिस्प्लेड इट. इनिशियली फ्रंट -1 पे था तो फ्रंट को 0 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें वो ऑर्डर को रिमूव करना होगा तो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, इसीलिए. सो आई होप एवरीवन क्लियर है. व्हेन my front equal to 0, when order want to delete, हमें ऑर्डर डिलीट करनी होगी तो फ्रंट कहाँ से होना चाहिए, फ्रंट शुड बी 0. ओके, वाई बिकॉज 0, बिकॉज हमारा इनिशियली फ्रंट और रेयर जो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करके रखे हैं, -1 करके रखे हैं. सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखो तो ये -1 पे है तो डिलीट करते वक्त कैसे -1 में मतलब वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू इनिशियलाइज हियर द वैल्यू इज 0. Okay, this is the function of inserting the element into queue, that is enqueue. Okay, and if you want to remove the order after serving, so delete operation हमें perform करना है. Okay, so what about delete is, so no doubt void dq function हम call कर रहे हैं. So for deleting the element we have to check one important task, whether q is empty. मतलब इज एम्प्टी फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न 1 मीन्स एम्प्टी है. डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, q should not be empty. so is empty, yes, तो no order to serve, yes, ऑर्डर नहीं है. else डिलीट करना होगा तो क्या होगा, इसमें एलिमेंट है तो कैसे डिलीट करेंगे, नो डाउट फ्रंट को प्लस प्लस करो. ओके, फ्रंट से हम एलिमेंट रिमूव करने वाले, ऑर्डर सर्व सक्सेसफुली. ओके, सो इनिशियली जस्ट कॉन्सेंट्रेट, फ्रंट से हमने सब रिमूव किया रिमूव किया रिमूव किया, लास्ट में फ्रंट कहाँ जाएगा, मैक्स की तरफ जाएगा. मीन्स व्हेन वी सी दिस एग्जांपल अगेन, so you can easily understand that. Okay, so just concentrate यहाँ पे. Suppose we are taking second example here. ये देखो, अभी सपोज मैंने इंसर्ट 50, ये डायग्राम आप लोग जब देखते हो सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. ओके, फ्रंट क्या कर रहा है, इसमें सपोज रेयर से वैल्यू जा रही है, फ्रंट डिलीट हो रहा है डिलीट हो रहा है डिलीट हो रहा है, कर करके यहाँ तक आ गया. ओके, सो लास्ट लोकेशन मतलब पूरे एलिमेंट उसने क्या कर दिए हैं, डिलीट किए हैं. ओके, सो डिलीट करने के बाद फिर से मतलब मान लो यहाँ पे लास्ट वाली लोकेशन है सपोज 5 और यहाँ पे है अपना 0. ओके, सो यहाँ पे देखो क्यू का लास्ट एलिमेंट रिमूव होने के बाद उसको फिर से कहाँ पे जाना चाहिए, 0 में, क्योंकि ये सर्कुलर फैशन में है. तो रेयर से फिर से वैल्यू डालेंगे और फ्रंट से फिर से हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे. दैट्स वाई वी आर राइटिंग दिस फंक्शन. दैट इज द कंडीशन. सबको समझ में आ गई, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में. यू हैव टू क्लियर दिस पार्ट हियर. ओके, दैट्स व्हाई इफ फ्रंट इक्वल टू लास्ट लोकेशन पे जाएगा, फ्रंट को फिर से डिलीटिंग के लिए -0 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर में नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो मैक्स -1 से 0 पे. ओके, एंड हियर द सेकेंड कंडीशन इज इफ फ्रंट -1 इक्वल टू रेयर, मीन्स डिलीट करते करते फ्रंट रेयर से पीछे है, इसका मतलब है सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं. एट दैट टाइम फ्रंट एंड रेयर को क्या करो, -1 सेट करो, मतलब फिर से हम उसमें एलिमेंट डाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट. ओके, एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेस, डिस्प्ले करने के लिए इट शुड नॉट बी एम्प्टी, सो नो ऑर्डर टू डिस्प्ले. ओके, और डिस्प्ले के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे. डिस्प्ले हम दो चीज़ों से कर रहे हैं, एक तो ऑर्डर भी डिस्प्ले करना है. सो डिस्प्ले करते वक्त ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट लेस देन और इक्वल टू रेयर. ओके, मतलब क्या, डिस्प्ले करते वक्त मतलब एलिमेंट है
क्यू में, और रेयर से एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं मतलब फ्रंट रेयर से पीछे ही रहेगा, और फ्रंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू रेयर, और फ्रंट को ही हमने दूसरा पॉइंट दिया है आई. So I is less than or equal to rare, so we have to display that order. Just run that code so that you can easily understand this point. Okay, so we are running it. Okay, so just check here. I'm entering one. Enter the place order. Okay, suppose ID one, order is pizza. Okay, pizza मैं order कर रही हूँ. Okay, enter it. Okay, order placed successfully. If I am pressing case, third case means display हो गया order ID order name. Suppose मैंने second case किया 2. So just see here, order served successfully. If I am pressing display also, that is 3, it just, sorry, if I am pressing 3, just see here, no order to display. Means